Hello champs, I hope you all are doing great. So continuing with our video series जिसमें हम discuss कर रहे हैं hidden gems, that is the important points from all the chapters of Indian economic development. और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं chapter number 3, that is liberalization, privatization and globalization के बारे में. तो जल्दी से start करते हैं. So the first point, establishment of GATT, General Agreement on Trade and Tariff, was established in the year 1948 with 23 countries, right? और फिर इसको succeed किया WTO ने, that is World Trade Organization, in the year 1995. तो ये establish हुआ था 1948 में, याद रखेंगे. New economic policy कब आई थी? That is liberalization, privatization, globalization 1991 में, July to be precise. इस टाइम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव. As a successor to GATT, this was done in the year 1995. Important है, याद रखेंगे. Then this is also an important point कि quantitative restrictions on the import of manufactured consumer goods and agricultural products, ये restrictions were fully removed from April 2001. Also champs, if you want the PDF of these points तो आप description box में check करें, आपको मिल जाएगी. Then demonetization कब हुई थी? 8 November 2016 को, जिसमें क्या हुआ था? Two largest denomination notes, that is rupees 500 and rupees 1000, were demonetized with immediate effect. आज रात को 8 o'clock प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि अब 12 बजे से 500 और 1000 के नोट्स will not be accepted. They will cease to be legal tender except for a few specific purposes such as payment of utility bills, that is also for a specific period. तो इससे क्या हुआ था? 86% of the cash in circulation was rendered invalid. Big step. और demonetization क्या features, advantages, disadvantages, consequences, ये सब पढ़कर जाएंगे. Then GST Act आया था 2016 में. Act तो 2016 का है, but this came into effect from July 2017. ठीक है. Then Dash is one of the outcomes of the globalization process and is a new employment opportunity in big cities. बता सकते हैं? एक पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में NCERT में, और उस पिक्चर के नीचे ये लिखा है. यू नो व्हाट, पिक्चर्स के नीचे क्या लिखा है ये भी आप जरूर अच्छे से देख के चले जाना. समटाइम्स क्वेश्चंस आर ड्राफ्टेड फ्रॉम दोज ओनली. तो इसका आंसर है आउटसोर्सिंग. चांस मेरी जो पेंसिल है वो नहीं चल रही थी इस वीडियो से पहले, बट शूट करना बहुत ज़रूरी था, सो प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम जस्ट यूजिंग my fingers to write. Alright, Dash is seen as a major contributor to India's exports. ये भी आपका एक पिक्चर के नीचे given है. तो the answer is IT industry. IT industry is a major contributor of Indian exports, जिसमें हम अपने softwares export करते हैं, right? So this answer is IT industry. Then India approached the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, popularly known as World Bank, and IMF, International Monetary Fund, and received $7 billion का लोन टू मैनेज द क्राइसिस. कौन सा क्राइसिस? जो 1990 में हो रहा था, जिस वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी. तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने हमें कहा कि हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, बट तुम्हें अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें लोन देंगे. सो एज अ रिस्पॉन्स वी ब्रॉट दीज पॉलिसी. देन नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी पढ़ के जाएं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट येस यू शुड बी अवेयर ऑफ द पॉइंट्स. हमारा हाई फिस्कल डेफिसिट हो रहा था, मतलब बहुत बोरो करना पड़ रहा था गवर्नमेंट को. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत ज़्यादा एडवर्स था, यानी आउटफ्लो ज़्यादा था, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बहुत ही कम था. इनफैक्ट हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे वो 2 वीक्स के इम्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी नहीं थे, या 2 वीक्स के इम्पोर्ट्स के लिए ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे, इससे ज़्यादा नहीं. So that is fall in foreign exchange reserves were not even sufficient for a fortnight, that is 2 weeks. Rise in prices और inflation हो रहा था. PSUs भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और overall inefficient management. So these were the reasons. Then Dash aims at creating a borderless world. बता सकते हो? I think this is easy. The answer is globalization. कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज है. The movement of goods, capital, people across nations has become very, very easy.
ना ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्या रीजंस थे? लो इन्वेस्टमेंट, पार्शियल रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी जिस वजह से फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कंपटीशन एकदम से बहुत आ गया था, इंटरनेशनल कंपटीशन जिसको वो फेस नहीं कर पाए, और हमारा जो फोकस था वो कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो गया था। इस ये पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के जाना, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। देन चैम्प्स, बुक में बहुत सारा डेटा है बट यू डू नॉट हैव टू लर्न एवरीथिंग, बट आई वुड रेकमेंड कि आप ये वाला लर्न करके जाएं वंस सीबीएसई आस्क्ड दिस इन द सैम्पल पेपर। तो क्या है ये क्वेश्चन? पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में यानी आफ्टर रिफॉर्म्स हमारा जो एफडीआई और एफआईआई दोनों बढ़ गए थे और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ गए थे। तो इसके लिए आप डेटा लर्न करने की कोशिश करें और ये सिंपल भी है। जैसे एफडीआई और एफआईआई ये आप मैक्रो में भी पढ़ते हैं। FDI is the ownership of enterprises like Walmart in India and FII is कि foreigners हमारी कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, दोनों ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। दिस इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 100 मिलियन यूएस डॉलर्स इन 1991 टू 30 बिलियन यूएस डॉलर इन 1780। ठीक है, इसको कोशिश करो लर्न करने की। Then there has also been an increase in foreign exchange reserves from 6 billion US dollars in 1991 to 413 billion dollars in 1890। ठीक है, ये लर्न करें। देन ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर दो टाइप के मेजर्स गवर्नमेंट ने फॉलो किए, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स। कोशिश करो इनको भी ध्यान रखने की। स्टेबलाइजेशन मेजर्स शॉर्ट टर्म मेजर्स थे जिससे हम बीओपी इम्बैलेंस को ठीक करना चाह रहे थे, टू करेक्ट द वीकनेसेस इन बीओपी एंड टू कीप द प्राइसेस अंडर कंट्रोल। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जहाँ पे भी वर्ड स्ट्रक्चरल आ जाता है उसका वैसे भी मतलब होता है लॉन्ग टर्म। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं और इससे हम क्या कोशिश कर रहे थे? टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड टू इंक्रीज आवर कंपेटिटिवनेस। देन पूरा चैप्टर जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में डिवाइडेड है, फिर उसके हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखने हैं। तो अगर मैं सिर्फ लिबरलाइजेशन की बात करूं, इसके अंडर 5 टाइप के रिफॉर्म्स हैं और हर रिफॉर्म के अंडर अपने सब पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से आप स्टडी करें। क्या है रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। सो हर टाइप के रिफॉर्म्स के अंडर अपने सब पॉइंट्स है, लाइक आई सेड। ठीक है, तो वो आप पॉइंट्स लिख के देखो, आपको याद आ रहे हैं, जस्ट द मेन हेडिंग्स ऑफ द सब पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हम पढ़ते हैं दैट द रोल ऑफ आरबीआई चेंज्ड फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर, राइट, इस टाइप का। देन फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स में पढ़ते हैं हम कि डायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स को कम किया गया, इवन कॉर्पोरेशन टैक्स के रेट्स को कम किया गया। देन सिंपल क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। तो ये है प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन के अंडर आपको याद रखना है, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट, एंड प्राइवेटाइजेशन कैन टेक प्लेस इन 2 ways। वन, outright sale by the government of an enterprise, and second, withdrawal of the government from ownership and management of public sector enterprises। ध्यान रखिए, government's taxation and public expenditure policies are known as, बताओ, fiscal policies। then WTO के functions भी important है। WTO establish हुआ था 1995 में और इसके functions हैं to provide a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade। मतलब एक पूरा rule हो, everything should be regulated। ऐसा नहीं कि कोई भी नेशन किसी और नेशन पे ऐसे ही बिना बात के रिस्ट्रिक्शंस लगा दे ट्रेड के ऊपर। हाँ, वॉर वगैरह वाली सिचुएशन अलग है, बट generally you cannot put just like that restrictions on any country कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, like without any specific reason। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे प्रमोट होते हैं बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड। इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, ओवरऑल वर्ल्ड रिसोर्सेज ऑप्टिमली हम यूटिलाइज करते हैं। और ऐसा ना हो कि कोई किसी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो सभी कंट्रीज को मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए, सभी कंट्रीज को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए।
देन जीएसटी के अंडर कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम किया गया, वैसे ये टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे एंड 23 सेसेस। सेस पता है ना आपको क्या होता है, टैक्स के ऊपर फिर एक सेस लगता है विच इज नॉर्मली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज लाइक प्राइमरी एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सेसेस को रिप्लेस किया गया बाय जीएसटी। तो अगर कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हो, सेंट्रल लेवल पे कौन से टैक्सेस को खत्म किया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैसे और भी हैं बट जस्ट 2 एग्जांपल्स आर रिटन। स्टेट लेवल पे किन टैक्सेस को खत्म किया गया, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स वगैरह। सो यहाँ पे मैंने लिखा है जीएसटी हैज रिप्लेस 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें से 8 सेंट्रल टैक्सेस थे और 9 स्टेट लेवल थे, 23 सेसेस को भी रिप्लेस किया। नाउ जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स है या कंजम्पशन टैक्स है, ये भी एक फीचर है इसका। इससे आप याद रखें कि जैसे अगर गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं महाराष्ट्र में और वो फिर दिल्ली पहुंचे हैं जहां पे कंज्यूमर ने उन्हें खरीदा है, तो टैक्स उनका दिल्ली में लगेगा जो कि गुड्स का डेस्टिनेशन है, और वो जो टैक्स होगा उसमें सेंटर और स्टेट का हिस्सा होगा। बीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ की नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे बीपीओ को हम कॉल सेंटर्स भी कह देते हैं, राइट। डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, राइट, जिनेवा। देन आरबीआई कब सेटअप हुआ था, 1935 में, 1935 में। देखो कंफ्यूज मत होना, डब्ल्यूटीओ 1995, आरबीआई काफी पुराना है 1935। अच्छा, नॉलेज के लिए आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ वर्ल्ड बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद जैसे आपको पता है कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को स्टेटस दिया जाता है महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न का। तो इसमें आप 3 to 4 एग्जाम्पल्स ईच के लर्न करके जाएं। यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स लिख के बताए हैं। महारत्न जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नवरत्न में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। मिनी रत्न में एएआई दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इंडियन रेलवेज का जो केटरिंग और टूरिज्म वाला पार्ट है दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये भी आप लर्न करके जाए। फिर हमने देखा कि रिफॉर्म्स से, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, इनसे एग्रीकल्चर में ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, उसके रीजंस भी इम्पोर्टेंट हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं हुआ, उसमें भी हमें फ्लक्चुएशंस ही देखने को मिली, बट यस सर्विस सेक्टर की ग्रोथ अच्छी हुई। तो हम कह सकते हैं कि आज के समय जो हम ग्रोथ देख रहे हैं अपनी कंट्री में दैट इज मेनली ड्रिवन बाय द सर्विस सेक्टर। ओके, तो सर्विस सेक्टर की हाई ग्रोथ के रीजंस क्या है, ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी गिवन है बैक पे। इकोनॉमिक रिफॉर्म से बेनिफिट मिला, आईटी सेक्टर का जो इतना बूम देख रहे हैं हम, वो ऑफ कोर्स हमारे सर्विस सेक्टर को और आगे लेके जा रहा है। सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, स्किल्ड मैन पावर एट रीजनेबल कॉस्ट और एफिशिएंट रिसोर्सेज। और एक चीज और है कि सर्विस सेक्टर अगर ग्रो कर रहा है तो बाकी सेक्टर्स भी ग्रो करेंगे, कर रहे हैं, मे बी नॉट एज मच बट स्टिल। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट तो हैं। अगर सर्विस सेक्टर तरक्की कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स काफ़ी एस्टैब्लिश हो और वो इजी लोन्स देते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर के लिए भी अच्छा है, फार्मर्स को इजी लोन मिल पाएगा अपने एग्रीकल्चर के लिए, वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, बिजनेसेस को लोन मिल पाएगा टू सेट अप इंडस्ट्रीज। सो ऑल द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो अगर सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है बाकी सेक्टर्स भी ग्रो करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद इंडियन रुपी डी वैल्यू हो चुका है अभी तक 3 टाइम्स, एक 1949 में, एक 1966 में और एक 1991 में। डी वैल्यू आपको पता है ना, जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली प्लान करती है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को हमें कम करना है, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स इंकरेज हो सकते हैं और इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं। तो अभी तक 3 टाइम्स इंडियन रुपी हैज़ बीन डी वैल्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अब तो वैसे भी हम फ्लक्चुएटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं, डिमांड और सप्लाई से सेट होता है एक्सचेंज रेट। ऑलराइट,
ग्रोथ ऑफ जीडीपी, तो इसका एक टेबल भी गिवन है आपकी बुक में, ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो उसका एनालिसिस अच्छे से आप देख कर जाएं। एक लाइन यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1980 91 to 8.2% in 2007 to 12. So ये figures अगर आप learn कर सकते हैं, you can try. Then with the reform policies, now foreign investment limit in banks was raised to around 74%. ये भी आपकी बुक में given है under the financial sector reforms, जो कि liberalization का पार्ट है। Alright, then ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The only industries which are now reserved for the public sector are atomic energy generation and some core activities in railway transport, यानी two industries are reserved for public sector as of now. Defense में भी government is trying more and more privatization for the production. Right, so atomic energy generation and some core activities in railway transport ये अभी reserved हैं public sector के लिए, यानी 2 industries. Alright, Jam, so this was it for this video. Quickly मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में वैसे क्या क्या है, इसका ब्रॉड ओवरव्यू। लिबरलाइजेशन में वो 5 रिफॉर्म्स जो मैंने आपको बताए, प्राइवेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, जितना लिमिटेड गिवन है उतना करें। ग्लोबलाइजेशन जिसमें आउटसोर्सिंग अच्छे से करके जाना, आउटसोर्सिंग में हम देखते हैं इंडिया हैज़ बिकम अ फेवरेबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि एक तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर मिलती है और अफोर्डेबल प्राइसेस पर भी। उसके बाद फिर एलपीजी का हमें अप्रेजल भी करना है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम अगर आप देखें दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, मतलब इवैल्यूएट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एलपीजी के पॉजिटिव और नेगेटिव में स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, क्यों, रीजंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, क्यों, रीजंस देख कर जाएं। आफ्टर दिस वी हैव डीमोनेटाइजेशन इन दिस चैप्टर एंड ऑल्सो जीएसटी, वो भी आप देख कर जाएं, उनके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स। So I hope this video helped you. If it did, please like the video and subscribe to our channel. और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बाकी चैप्टर्स की भी हिडन जेम्स बहुत ही जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में।